उसके बाद उसका अपना दिए उसको सबको एडमिट कीजिए पार्टिसिपेंट कम रीनेम बच्चा नहीं करेगा तो हम अपने आप एडमिट अब हो कर जाएगा एडमिट अकेले। अब इसको हम क्या करें, कैसे करो तो सेट। मैम मेरा भी क्लास है अभी। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। इसलिए उल्टा है ना। आर यू गेटिंग द राइट व्यू? सीधा दिख रहा है? Yes, ma'am. इधर से कर देते हैं। मैम इस साइड से लीजिएगा, ठीक है, वो सीधा आएगा, ठीक है। पढ़ना है उधर से ना? हाँ हाँ सब चलते रहेगा। अभी सीधा आएगा। हाँ बस इसमें टच नहीं करना है। I think there should not be any problem. Close the book. Only open the copy. There should not be any problem regarding the nervous tissue and muscular tissue. So, according to your view, for the reason of tissue, close the book and open the copy. So, what content in tissues particularly should I start? What content? Nervous tissue again? Any problem? Tell me. Should I go for the nervous tissue in brief again and one by one all? मैम आपकी बात नहीं है। मैम आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं। What I am asking, well, please nervous tissue in brief. I am telling about again so that there should not be any problem. Okay? Then muscular, then other. Go silent. Nervous tissue. As I told, nerve. What is the neuron of a nerve cell? Neuron. Okay, neuron is the structure and functional unit of a nerve cell. Okay? So we all know neuron parts. हमने बताया था ना, किसी भी नर्वस टिश्यू का दो पार्ट है, फर्स्ट न्यूरॉन एंड सेकेंड ग्लियल सेल। याद आया? ठीक है, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लेना, न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल। इज दैट क्लियर? एंड these two both helps for transmission. Take out the copy, don't take out the book. It
दूसरा है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द नर्व सेल। समझ में आया? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द नर्व सेल। Am I clear? ठीक है? So if you see the neuron, it has what? ये structural and functional part। ठीक है? वो न्यूरॉन के कितने पार्ट हैं? फर्स्ट डेंड्राइट, सेकंड एक्सन, थर्ड साइटॉन, साइटॉन बॉडी। ठीक है? अब if we see the structure, मैम बोर्ड भी tell me, board is visible? These are dendrite, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, मिसल्स ग्रैन्यूल एंड ये जो है हमने बताया था, इट इज माइलिनेटेड शीट, माइलिनेटेड शीट। ठीक है? और ये जो गैप है इसको कहते हैं नोड ऑफ रैंडियर। दिस इज, ये एक्सन है, एक्सन बल्ब। अब देखो इनसाइड ये जो स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर है, दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इज इट ऑल विजिबल? दिख रहा है? So this body is cytol and at the end ये hairy जो outgrowth है from each end of cytol, they are dendrites. This is one extended end of cytol और इसको क्या कहते हैं? Axon. When it goes to the last, यहाँ देख रहे हो, it is knob-like structure। ठीक है? और inside this knob-like structure, small rounded structure filled with a chemical, and these are neurotransmitter। Am I clear? अब देखो, this was the structure। और ये जो माइलिनेटेड शीट होता है, मे बी ए क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। ठीक है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। नाउ सी, ये जो देख रहे हो स्मॉल राउंडेड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ये क्या है? मिसल्स। मैम इट इज द एग्रीगेशन ऑफ राइजोम्स। Yeah, certainly. I am very much happy that what I told in the online class, you are recalling it. Thanks. So, these are the
electrical or mechanical in nature. ठीक है? Then this impulse में देख रहे हो, it will travel down to action और जैसे ही यहाँ आएगा, ठीक है? ये जो देख रहे हो न्यूरोट्रांसमीटर, it is filled with chemicals. और क्या करेगा? इसको स्ट्राइक किया, ठीक है? जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगा, it will rupture, ठीक है? And after being ruptured, it will release the chemicals. Is that clear? And as soon as the chemical is released by striking out of the impulse, then this impulse immediately jump over to the next neuron. ये next neuron है, ठीक है? अब देख रहे हो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है, that is the synapse. This is very important. This synapse is what? Suppose 1 mark question is asked. What do you mean by synapse? So what you will say? The junction between two neurons. Is it all clear? समझ में आया सबको? So this is the function of a neuron. Or you can say, already I had given in online classes the 5 marks, 3 marks, 1 mark question you might have noted down. So 5 marks में very important that question will be what? If you have missed to write, तो अभी लिख लो. Write the mechanism of transmission. Write the mechanism of transmission of a nerve impulse. Am I clear? 5 marks, very important. ठीक है? And sometimes it may be asked that what do you mean by the significance of a nerve cell? 3 mark question. ठीक है? Then in that case, what you will write? I'm not able to listen you. देखो, for significance, you will give in this format. न्यूरॉन होता है किसी भी, अब यहाँ पे न्यूरॉन नहीं, यहाँ पे नर्व सेल, नर्व टिश्यू, ठीक है? It has got 2 parts, 2 functions. First for transmission and second for providing the nutrition to the neuron or the nerve cell. मैम 5 मार्क का क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना. हाँ लिख लो. Write the mechanism of transmission of a nerve impulse. Mechanism of transmission of mechanism होगा तो mechanism of a nerve impulse होगा या other way होगा. What do you mean by the transmission of a nerve impulse? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा. First you will give the diagram, level it properly and then write. Structure कुछ नहीं लिखना है, only you have to start that how the message or information is received by dendrites and where they go, how it happens, and lastly the impulse has to jump over to the next neuron. Glial cell, GR. Provide nutrition to the neuron. Is it all clear? Very good. I think in most of this section where I teach must be clear to you.
should be left. As it clear? Should I rub it? So now your अब है, if you recall what another important information I have told, types of neuron, just write types of originated from the central nerve system and the cranial nerve system, and the last one is the automatic. Yeah. I know you are answering well. Ma'am, nerves originated from the central nerve system. First क्या होगा? Unipolar, bipolar and multipolar. Very good. And multipolar. Bipolar में अगर नहीं लिखे हो या मिसिंग है तो हाउ यू विल राइट? एक्शन 1 होता है. एक्शन देखा ना तुमने? इट इज 1 एक्शन बट नो डेंड्राइट. कोई डेंड्राइट नहीं होगा, ओनली एक्शन, 1 एक्शन. Bipolar 1 action and 1 dendrite. One dendrite. और यही कारण है कि like it is nose. present where? Ma'am, nose and sensory nerves. सेंसरी पार्ट जैसे हमारा नोज हुआ ऑल्फैक्टरी, आईज हुआ ऑप्टिक, तो जितने भी सेंसरी पार्ट हैं हमारे बॉडी में उनका जो एपिथेलियल लेयर होता है, ठीक है, वहीं पे इंसर्टेड होता है ये बाइपोलर नर्व. ठीक है, तो बहुत कम एग्जाम्पल में लिख लोगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. ठीक है, लास्ट इज मल्टी, जो अभी हमने बनाया है. 1 axon and number of dendrites. ठीक है, so this format is of what? It is the example of multipolar. Multipolar. And it is present in the long distance and yeah, everywhere, because we have a networking of nerves. समझ में आएगा? I think this part of the tissue, no problem can arise. Is it clear? Now, in brief, I am touching the another part of tissue. Should I go for animal or plant? Animal. Now, first of all, let us discuss in brief regarding the connective tissue, because it's very important. Question पहले लिख लो. What is connective tissue? Write down. What is connective tissue? Give its significance in brief. Give its significance in brief. अब देखो आंसर में क्या लिखोगे. फर्स्ट लेसन देन राइट. Connective tissue, we know it is having the strong networking present right from top to bottom. और जितने भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, they are all based on one term. और वो टर्म क्या है? I will
वे व्हाट आर, ये जो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनका बेस क्या है? वन एंड ऑल टर्म दैट इज मैट्रिक्स। याद आया? आर यू रिकॉलिंग? सेमी फ्लूइड। वेरी गुड, सेमी फ्लूइड। मैट्रिक्स क्या है? सेमी फ्लूइड। और ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर हम लोग सेल से ही देख रहे हैं। उस समय हम लोगों ने उसे प्रोटोप्लाज्म कहा, देन इट केम टू साइटोप्लाज्म, फिर व्हेन टेक्स द प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा इट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। प्लांट में प्लास्टिड्स स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू का जितना भी टाइप्स है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द नेचर एंड लोकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? और ये कितने टाइप में होगा? सेमी फ्लूइड, फाइबर्स एंड कंसेंट्रिक लेयर्स। याद आया? ये कंसेंट्रिक लेयर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज द मैट्रिक्स, फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स। वेयर? बोन। बोन। इट इज जो हैवर्शियन कैनाल के सराउंडिंग में, आई हैड मेड द डायग्राम, जस्ट रिकॉल इट एंड सी कि ये हैवर्शियन कैनाल था और ऐसे ऐसे सराउंडिंग ये लेयर्स हैं, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स। और ये कंसेंट्रिक लेयर्स में तुमने देखा होगा डायग्राम में, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट, बोन सेल। ठीक है, तो ये देखा तुमने, सेमी लिक्विड हो सकता है, फाइबर्स फॉर्म में होगा और कंसेंट्रिक लेयर्स में होगा। ठीक है, तो फाइबर फॉर्म कहाँ पे होगा? कार्टिलेज। नाउ इफ आई आस्क कि टेल मी इन 5 लाइन्स रिगार्डिंग कार्टिलेज, राइट डाउन द क्वेश्चन। राइट about the cartilage, write about the cartilage, full stop. How it differs from a bone, how it differs from a bone. ब्रैकेट में लिख लोगे 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स में तुम्हें लिखना है। क्लोज द बुक, डोंट कैरी, you keep book in your home and study there, but don't open here. How it differs from a bone. ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या क्या माइंड में स्ट्राइक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, Ma'am, its matrix is present in solid form. Yeah. Where it is present, तो we all know कि कार्टिलेज का Ma'am, nose, कार्टिलेज का हाँ Ma'am, nose is the cartilage is present in those parts. yeah. So Ma'am, it is we all know कि boneless कार्टिलेज bone. present where, पता है ना? Are you all knowing? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You tell me. No. What you have attended the class? Anyone? Anyone of you? You don't know where the cartilage is present. Nose. Ma'am,
एक्सटर्नल पिन्ना ए, मैम कैनाई विशाख। विंड पाइप लिख लो अभी, ठीक है। बोन वी ऑल नो स्केलेटल सिस्टम ही है। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस व्हाट यू विल राइट On the that is how it is made up of, ठीक है। तो cartilage I have told in quite detail if you recall, cartilage how it is made up of protein and sugar, Ma'am, sugar. protein it is a solid and matter. sugar interpreted with calcium salt, is that clear? कार्टिलेज में क्या लिखोगे? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर इंटरप्रेटेड विथ और मिक्स्ड विथ और हैविंग द लेयरिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, इज दैट क्लियर? यही कारण है, ये एक्सटर्नल पिलना को देखो फ्लेक्सिबल है लेकिन थोड़ा हार्ड भी है ना? तो ये क्या है? This hardness, why? If the question I ask, कि why cartilage is flexible as well as hard in nature, what you will say? Ma'am, because it is made up of protein and sugar, that's why. Because it is made up of proteins and sugars. No, beta. Ma'am, Hardness provided by calcium. mixed with calcium salt. ठीक है? Ma'am, Hardness. sugar and calcium. Protein and calcium. You will say only calcium. Hardness in cartilage is all provided by calcium. ठीक है? अब है the cells of cartilage. इसको क्या कहते हैं? Chondrol. सेल को कहते हैं chondrocyte. chondrocytes. ठीक है? और ये क्या क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स White collagen. हाँ, वेरी गुड, वाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज, ठीक है? इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क, व्हाई शुड यू राइट मोर? ठीक है, लेकिन उस ब्रीफ में भी द मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्ट और पॉइंट यू हैव टू राइट इट, ठीक है? नाउ थर्ड पॉइंट व्हाट यू विल राइट? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स, कहाँ? कार्टिलेज में. और बोन में कंसेंट्रिक लेयर्स. अच्छा, ये भी लिख लेना, डोंट फॉरगेट टू राइट, एंड मे बी क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू आल्सो, दैट ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है दे आर ऑलवेज इन ग्रुप्स, झुंड में प्रेजेंट होते हैं, नॉट सिंगली, मे बी 2, 3 और 4 इन नंबर्स. इतने के ग्रुप में प्रेजेंट होता है क्या? chondrocyte cells. And that groups of chondrocytes, they are present in dipped in fluid, जिसको कहते हैं lacunae, ठीक है? लिख लेना. They are chondrocytes, they are in 2, 3 or 4 groups, find in fluid filled cavity, जिसको कहते हैं lacunae, LACUNAE, lacunae. मैम बोर्ड विजिबल नहीं है. अब है? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है? तो नाउ इसको क्या कहते हैं? अगेन इट मे
बी अ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जहाँ पे कार्बोसाइड्स इन ग्रुप्स, वो हमेशा ग्रुप्स में होगा, या 2 4 3 या 4, और वो हमेशा फ्लूइड फिल्ड कैविटी में होगा, और उसको कैविटी को क्या कहते हैं? लैक्यूनी, दैट इज रिटन देयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कार्टिलेज वेरी 3-4 टिक मार्क कर दो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन अभी हम बोन से रिलेटेड या कार्टिलेज से दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कम टू द फ्लूइड टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फ्लूइड और वस्कुलर कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ मैम सॉलिड एंड लिक्विड। ब्लड एंड ब्लड एंड सॉलिड एंड लिक्विड मैम 2 टाइप्स के होते हैं। ब्लड एंड एंड लिम्स। मैम लिम्स में सिर्फ WBC होता है, ब्लड्स में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन इट। मुझे खुशी है कि जितना हमने पढ़ाया है, Yes, ऑल आर ब्लड सबको पता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, राइट डाउन, वहीं पे लिख लो। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, write the component of blood and their functions. फंक्शन हमने इसलिए अभी दिया कि कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है, राइट द फंक्शन ऑफ अ ब्लड। तो ये सारे कंपोनेंट्स का फंक्शन अगर तुम लिख लोगे, यू नो, तो यू कैन राइट वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वी ऑल नो, इसको हम लोग वैसे डिवाइड करेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड फेज, सॉलिड RBC, WBC, platelets, liquid that is plasma, And then plasma is present in liquid form. yeah, 92% water, 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, 4 प्रोटीन होते हैं। राइट द नेम ऑफ, क्वेश्चन लिख लो, राइट द नेम्स ऑफ अ प्लाज्मा प्रोटीन। दे आर 4 इन नंबर्स, दे आर 4 इन नंबर्स। ये आंसर में है, क्या क्या है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, किसी का मिस हो गया है तो लिख लो, हम बोल रहे हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड एंटीबॉडी। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड एंटीबॉडी। Am I clear? ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन, और हमने क्या बताया था कि फाइब्रिनोजेन दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अगेन अ क्वेश्चन फॉर MCQ। फाइब्रिनोजेन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स फॉर क्लॉटिंग, तो योर आंसर विल बी फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इज इट ऑल क्लियर? नाउ कम टू लिम्फ। लिम्फ है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ब्लड विदाउट RBC एंड प्लेटलेट्स। तो इट्स वेरी वेल नोन कि जब RBC नहीं है तो इट इज नेवर रेड इन कलर, प्लेटलेट्स इज नॉट देयर, नॉट क्लॉट। ठीक है, अब है
कि फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये क्या ये इसका फंक्शन है, व्हाट इट डज इन आवर्स बॉडी। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि जब ब्लड का फ्लो मैम तो अरोटा जो फ्लो करता है जब हाई प्रेशर से एग्जॉस्ट और कैपिलरीज में आएगा, जो सिंगल लेयर्ड सेल है, बहुत डेलिकेट सेल है, तो विथ वेरी हाई प्रेशर ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया। और जैसे ब्लड यहाँ आएगा, प्रेशर इज वेरी हाई, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिलरीज का कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो प्रेशर एक्सर्टेड मोर, ये रप्चर हो जाता है, ठीक है। और रप्चर होने के बाद ब्लड कम्स आउट और ये started flowing around tissues and organs. मैम it is unidirectional, it is flow in unidirectional from tissue to organ. वेरी गुड, ठीक है। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट, ठीक है। इज इट ऑल क्लियर? सो नाउ बेल हैज गॉन, टाइम इज ओवर। सो वॉट एवर आई हैव टॉट, प्लीज ट्राई टू राइट द क्वेश्चन बाय योर ओन। जो हमने क्वेश्चन दिया है उसको खुद से लिखोगे, नहीं समझ में आएगा फिर से you will come to the school according to your roll number and ask me. Is that clear? Yes ma'am. Okay ma'am. Thanks ma'am.